आज आप लोगों के सामने हमारे जो आजमल आईएएस एकेडमी जो इतने सालों से चल रहा है, मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब और सिराजुद्दीन आजमल साहब और आजमल फैमिली ने ये इंस्टीट्यूशन यहाँ जो एस्टैब्लिश किए थे, एक नेक उद्देश्य उनका था कि हमारे आसाम के सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में अच्छा कोई रैंक लाए, अच्छा कोई पोजीशन मिले और सरकार के अलग अलग विभागों में उनको मौका मिले। तो अब तक हम 100 से भी ज़्यादा अलग अलग सरकार के विभागों में हमारे यहाँ से सफल हुआ जो भी लोग हैं उनको काम का मौका मिला है, वो सेवा कर रहे हैं। ये सफ़र का और आगे ले जाने के लिए हमारे साथ दो महारथी दिल्ली से जुड़े हैं। हमारे यूएस खान साहब है और राहुल स्वरूप श्रीवास्तव साहब है। दोनों दिल्ली से हमारे आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े हैं। मैं इस दोनों महारथियों के बारे में विस्तार से बोलने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे डायरेक्टर डॉक्टर किशोर इस्लाम साहब को कि वो अपना ये जो प्रोग्राम है आगे किस तरह से हम ले जाएंगे इसके ऊपर थोड़ा अपना बात करें। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत बेहतरीन एक कोटेशन बोले थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो हमारे ट्रस्टी खास तौर से माँ बदरुद्दीन अजमल साहब और सिराजुद्दीन अजमल साहब ने आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के भलाई के लिए वो लोग हर वक्त ऐसे सपने देखते हैं जो हर किसी का सपने को साकार करने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैं विशेषভাৱে আজি আমার আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে, আমাৰ আজমল CSRৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এটা গৌৰৱোজ্জ্বল দিন বুলি ভাবিম যে বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰাষ্টি মাও বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমল সাহেবে আমাৰ আজমল CSRৰ অধীনত বহুত প্ৰগ্ৰামৰ মাজত বিশেষকৈ সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেশ্যনক বা বিশেষকৈ পপুলাৰলি IAS কোচিঙক গুৰুত্ব দি আহিছে যে আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টত মানে যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা দেখুৱাব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিল্লীত পঠিয়াই তেওঁলোকক ফ্ৰী IAS কোচিং কৰাই আছিলোঁ আৰু তাৰ বহুতৰে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে 100ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে বিভিন্ন জায়গাত কাম কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আমাৰ ট্ৰাষ্টি মাও বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমল সাহেবে আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিশেষ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অসমতেই এই ব্যৱস্থাটো হাতত লোৱা হৈছে যে IAS একাডেমি, আজমল IAS একাডেমি আমাৰ হোজাইত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু যোৱা 2 বছৰত যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা হৈছে। APSCত আমাৰ 50ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে অতি গৌৰৱৰে কাম কৰি আছে। এই দিশত আৰু আগুৱাই গৈ পেলাই বিশেষভাৱে আমাৰ ট্ৰাষ্টিসকলে এইটো চিন্তা কৰিছে যে আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰতি বছৰে UPSCত ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন দেখা নাপাওঁ। যেনেকৈ যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ ডক্টৰ ময়ূৰ হাজৰিকা 5ম স্থান পাইছিলে বা আৰু দুই এজনে এনেকুৱা স্থান পাই আহিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয় আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট মেধা আছে, কিন্তু উপযুক্ত প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত বা গাইডেন্সৰ অভাৱত তেওঁলোকে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। আৰু যাৰ কাৰণে আমি এই বছৰ বিশেষকৈ আমাৰ চিফ পেট্ৰন আমিৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব, সিৰাজুদ্দিন আজমল সাহেবে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে এই দিশত বিশেষকৈ UPSC কোচিঙত, যিটো পপুলাৰলি IAS কোচিং কোৱা হয়, IAS কোচিঙত ভাল গাইডেন্স দিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে যে অহা বছৰবিলাকত আমাৰ ষ্টুডেণ্টে যাতে UPSCত ভাল স্থান পাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি দিল্লীৰ বিশেষ এটা গৌৰৱোজ্জ্বল অনুষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰোঁ IAS কোচিঙৰ দিশত দে IAS, যাৰ ফাউণ্ডাৰ মেনেজিং ট্ৰাষ্টি QH খান ছাৰক ধৰি পেলাই আমাৰ বিতং আলোচনা চলি আছিলে। আৰু তাৰ লগতে আৰু বিশিষ্ট কিছুমান যিসকলে ইতিমধ্যে এই UPSC বা IAS কোচিঙত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ আজমল IAS কোচিঙত একদম কমপ্লিটলি এটা ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং বা ৰিবাম্পিং আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ বিশেষভাৱে IAS কোচিঙৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো এজন বিশিষ্ট প্ৰশিক্ষক মিষ্টাৰ ৰাহুল স্বৰূপ ছাৰে যোৱা
25 বছৰৰ পৰা UPSC কোচিঙৰ লগত জড়িত আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিমানকেইখন আগশাৰীৰ মানে UPSC কোচিং আছে, IAS কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে, তাৰ লগত তেখেতে জড়িত আছিলে। আৰু আমাৰ QH খান ছাৰ DIS-ৰ ফাউণ্ডাৰ মেনেজিং ট্ৰাষ্টি, তেখেতেও মানে DIS-ৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউট আছে ইণ্ডিয়াৰ, আৰু তাৰ পৰা 4,500ৰো অধিক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে UPSC, APSC, ষ্টেট PCS-ৰ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছে। তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা মৰ্মে আমি যিটো মডালিটি উলিয়াইছোঁ, এই মডালিটিৰ যোগেদি পেলাই QH খান ছাৰ আমাৰ আজমল IAS একাডেমীৰ চিফ এডভাইজাৰ হিচাপত থাকিব। তেখেতে লাগাতাৰ আমাক গাইডেন্স দি যাব, আৰু ৰাহুল স্বৰূপ ছাৰে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট থাকি পেলাই তেখেতে আমাৰ IAS কোচিঙৰ সম্পূৰ্ণ মানে ফাংচনিংটো লিড কৰিব, আৰু তেখেতে মানে গোটেই প্ৰগ্ৰাম যিখিনি আছে এই প্ৰগ্ৰামখিনি এনেকৈ চলাই যাব যাতে আমাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত IAS-ত মানে আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্থান পায়। আৰু এই কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কিছুমান ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ যে আমাৰ কেইটামান প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ এডভান্স বেচ UPSC-ৰ কাৰণে এডভান্স বেচ আমাৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব 15 জুনত। এই অহা 15 জুনত তাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, আৰু 2 জুলাইৰ পৰা বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত IAS-ৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন বেচ এটা আৰম্ভ হ'ব 21 জুলাই 2025-ৰ পৰা, আৰু APSC-ৰ মেইন ক্ৰেছ কোৰ্ছ যিটো 8 জুনত প্ৰিলিম হৈ আছে, অহা 8 জুনত প্ৰিলিম হ'ব, তাৰ ইমিডিয়েট পিছত মানে 23 জুনৰ পৰা এটা বেচ আমি মেইন ক্ৰেছ কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিম, আৰু 17 জুলাই এটা মেইন ক্ৰেছ কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিম। আৰু APSC-ৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আমি 16 জুলাই আৰু 6 আগষ্টত আৰম্ভ কৰিম। গোটেইখিনি আমি আপোনালোকৰ হাতত দিম। ইয়াৰ পিছত আমি বিশেষকৈ আমাৰ কেইটামান মানে স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামো আছে, যেহেতু আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড বেচ আমাৰ BA-ৰ লগত IAS কোচিং বা BSc-ৰ লগত IAS কোচিং, আমাৰ মৰিয়ম কলেজত মানে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লৈ আছে তেওঁলোকক BA BSc-ৰ লগত ছোৱালীবিলাকক IAS কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজত ল'ৰাৰ কাৰণে BA উইথ IAS কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 4 বছৰীয়া কোৰ্ছৰ লগত তেওঁলোকক এনেকৈ পঢ়োৱা হ'ব যে গোটেই কোৰ্ছটো IAS কোচিঙৰ গোটেই কোৰ্ছখিনি কাভাৰ কৰি দিয়া হ'ব, যে এইফালে তেওঁলোকে BA বা BSc কমপ্লিট কৰাৰ লগতেই তেওঁলোকে গৈ পেলাই UPSC এক্সাম দিব পাৰিব। তো এনেকুৱা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত লোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি পেলাই আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে IAS-ত বা UPSC-ত তেওঁলোকে বিশেষ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব। আৰু heartily I am thankful and grateful to our Professor QH Khan sir as well as Rahul Swarup sir. I heartily welcome them and look forward to their sincere cooperation and support so that we can build a very strong ecosystem of the civil service coaching here in Hojai. Thank you so very much, sir. जैसा कि आपको बताया डॉक्टर सर ने कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में पहुँचे। उनके दिमाग में धारणा रहती है, शक रहता है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हैं या आसाम में बैठे हैं या हम रिमोट एरियाज़ में हैं, तो हमको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल सकती जो दिल्ली में मिलती। सभी के हालातों की बात नहीं होती कि वो दिल्ली चला जाए, दिल्ली जैसी कोचिंग ले ले। इसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली के टीचर्स प्रोफेशनली थोड़े बेटर ऑफ होते हैं, अच्छी कोचिंग देते हैं। यही सब ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम दिल्ली को बच्चों के डोर स्टेप्स पे ले आएँ। हम लोगों ने ये कोशिश की है, और बच्चों के लिए दिल्ली की जो विजिटिंग अपार्ट फ्रॉम द फैकल्टी विच आर ओवर हियर, यहाँ की फैकल्टी अपना एफर्ट दे रहे हैं और रिजल्ट भी लेके आए हैं। इसी को हम लेवल 2 पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली से अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ को लाकर बच्चों से पढ़वाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है, यहाँ के बच्चों में जो पढ़ाई चल रही है, जो उनका करिकुलम है, जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उसमें जो छोटे-छोटे गैप्स हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। 360 डिग्री इवैल्यूएशन जो होता है बच्चे का, टीचर ने क्लास में पढ़ाया, पढ़ाना तो एक बात हो गई, हमने बच्चे को पढ़ा दिया क्लास में। जो पढ़ाया है, जब तक वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की खास बात ये होती है, जो मेंस स्टेज का परीक्षा होती है, उसमें जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, उसमें जब तक एक क्वालिटी ऑफ आंसर नहीं होगा, तब तक बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ एक ऐसे मेंटर्स लगे जो उनकी क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो हमारी एक अपार्ट फ्रॉम दैट
फैकल्टी हु आर टीचिंग देम इन द क्लास, हम डेवलप कर रहे हैं एक मेंटरशिप टीम जो बहुत केपेबल लोग होंगे, जो बच्चों को आउटसाइड द क्लास बैठ के मेंटरिंग करेंगे। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्व किया करेंगे। ये सब अपनी जगह हो जाने के बाद अब जो कुछ पढ़ा है उस पे हमने इम्प्रूवमेंट किया। ये तब तक पूरा नहीं होता जब तक रेगुलर टेस्ट ना हो। उसके लिए हर वीक हम लोग एक वीकली टेस्ट रखा करेंगे। बच्चे का जो वीक में टॉपिक्स हो गए हैं उस पे टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट पे बच्चों का एक जनरल फीडबैक होगा, क्लास में टीचर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 1 to 1 डिस्कशन बच्चे की नीड के अनुसार किया जाएगा। इस तरीके से पूरे साल हम बच्चों का टेस्ट लेते रहेंगे, क्लास टेस्ट लेते रहेंगे, टीचर से एंगेजमेंट रहेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। अब यहाँ बात हो जाती है कि बच्चे बहुत बिविल्डर्ड होते हैं, कन्फ्यूज़्ड होते हैं, परप्लेक्स्ड होते हैं कि हम इस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें। बच्चे के पास टाइम कम है, उसे पढ़ना ज़्यादा है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, बच्चे को बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिले। वो किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमारे कंटेंट डेवलपर्स पढ़ते हैं। जितना अच्छा कंटेंट है उसको इकट्ठा करके बुकलेट फॉर्म्स में हम बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में दिया करेंगे, ताकि वो अपना जो उनका जो भागना दौड़ना है इधर उधर, वो जो उनका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और जो डेडिकेटेड बुक्स हैं उनको वो पढ़ के अपना सब्जेक्ट मटेरियल तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा साल बीतने लगता है। फिर हम आ जाते हैं टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि जो यूपीएससी चाहता है सिविल सर्वेंट से, उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हमारे जो टेस्ट होंगे वो सारे एक्सपीरियंस लोग बनाएंगे, और टेस्ट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल वही होगा जो यूपीएससी में एक्चुअली आता है, वही लेवल होगा जो यूपीएससी में एक्चुअल आता है। इस तरीके से हमें बहुत लंबी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की मिस्टर QH खान से, जो इस प्रोग्राम के चीफ एडवाइजर हैं, कि वो आपसे कुछ और इस प्रोग्राम। तकरीबन 1 साल पहले हमें इनवाइट किया गया इस होजाई में आने के लिए। उस वक्त हम यहाँ पर आए IAS एकेडमी में, अजमल IAS एकेडमी में जो भी सिविल सर्विसेज को लेकर, सिविल सर्विसेज प्रोग्राम को लेकर एक्टिविटीज़ चल रही थी, उन एक्टिविटीज़ से रूबरू हुए। कुछ दिन के बाद फिर हमारी ये दूसरी विजिट हुई, और फिर हमारे इस अजमल IAS एकेडमी और पूरे अजमल ग्रुप के जो ट्रस्टी हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सिराजुद्दीन अजमल साहब, उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग्स हुई, और मीटिंग्स के ज़रिए हमने उनके विज़न को समझा, और यकीन जानिए उनके विज़न ने हमारे दिल पर गहरा असर डाला। उनकी सोच ये थी कि हमने अजमल IAS एकेडमी स्टार्ट की है। पर्पस इस एकेडमी को स्टार्ट करने का आसाम के बच्चों को IAS बनाना था, सिविल सर्विसेज में भेजना था। 2 साल, ये 2022 में एकेडमी स्टार्ट होती है। 2 साल में स्टेट सर्विसेज में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी, तकरीबन जैसा आज़ाद साहब ने बताया, इन 2 सालों में 100 से ज़्यादा बच्चों को डिफरेंट सर्विसेज में इस एकेडमी ने प्लेस किया। लेकिन इतने शानदार रिजल्ट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो दर्द था ट्रस्टीज़ के दिल में कि हमने ये IAS की एकेडमी खोली है, APSC में सिलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी हमारा ख्वाब अधूरा है, और ये ख्वाब तभी पूरा होगा जब यहाँ से बच्चे IAS में पहुँचने लगे। और इस ख्वाब को पूरा कराने के लिए उनका ये कहना था कि आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जुड़कर मिलकर इस एकेडमी को हम एक नए अवतार में प्रेजेंट करें, एक नया आयाम दें इसको, ताकि इसी एकेडमी से सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन मिलने लगे। सिविल सर्विसेज का मतलब यूनियन सिविल सर्विसेज, IAS में सिलेक्शन मिलने लगे। तो कई राउंड मीटिंग के बाद फिर हमने फैसला किया कि अब हम किसी भी तरीके से इस एकेडमी से जुड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें कुछ होमवर्क की ज़रूरत थी। पिछले 3-4 महीने से हम उस होमवर्क में लगे हुए थे, और 3-4 महीनों की मेहनत का आज रिजल्ट है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि इस अजमल IAS एकेडमी के नए अवतार को लॉन्च कर सकें। दिस इज अजमल IAS एकेडमी 2.0। ये नया अवतार है अजमल IAS एकेडमी। अभी तक की जो अजमल IAS एकेडमी थी वो स्टेट सर्विसेज में डिसेंट रिजल्ट्स दे रही थी, लेकिन इस नए अवतार में हमें पूरा भरोसा है, और ट्रस्टीज़ का फुल सपोर्ट है, यहाँ की मैनेजमेंट टीम का फुल सपोर्ट है, और हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आने वाले चंद सालों के अंदर, अगले साल से ही आप IAS में रिजल्ट देखने लगेंगे, और लगातार ये रिजल्ट का सिलसिला आप देखते रहेंगे। और ये हम हवा में बात नहीं कह रहे हैं, हमारा भी अपना तजुर्बा है। अपनी एकेडमी को हम पिछले 22 सालों से चला रहे हैं, और हम अपनी एकेडमी में अब तक 4,500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं।
तो हवा में बात नहीं है। और उस तजुर्बे की बिना पर यहाँ जिस तरीके का इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, जिस तरीके का हम लोगों का प्लान है, उसको लेकर पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर यहाँ से आईएएस में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो बच्चे आईएएस बनने का ख्वाब रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको दिल्ली जाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी बनती है। यकीन जानिए, जो दिल्ली में आपको क्वालिटी टीचिंग मिल रही है, सिमिलर टाइप की क्वालिटी टीचिंग आपको होजाई में मिलेगी। दिल्ली के क्वालिटी टीचर्स, वो टीचर्स जिन तक पहुंचने का बच्चों का ख्वाब रहता है, सपना होता है कि हम उन टीचर के पास पहुंच जाएं, वो सारे टीचर आपको होजाई में मिलेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का यहाँ सपोर्ट सिस्टम है, जिस तरीके का ट्रस्टी का सपोर्ट है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस अजमल आईएएस एकेडमी से आईएएस में रिजल्ट मिले। अजमल आईएएस एकेडमी को हम नए अवतार में प्रेजेंट कर रहे हैं और नए अवतार का पूरा फोकस सिविल सर्विसेज यानी यूनियन सिविल सर्विसेज आईएएस में सिलेक्शन दिलाने पर रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एपीएससी में जो पिछले 2 सालों में हमें शानदार रिजल्ट्स मिले हैं, हम उसको अंडरमाइन करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आईएएस पर तो फोकस करेंगे, लेकिन एपीएससी में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहां पे भी रिजल्ट होंगे और आईएएस में भी रिजल्ट होंगे, और उसके लिए हमारे 2 सेपरेट प्रोग्राम्स होंगे। हम इंटरमिंगल भी नहीं करेंगे। आईएएस के लिए अलग से बैचेस होंगे, अलग प्रोग्राम होंगे, एपीएससी के लिए अलग प्रोग्राम होंगे। आईएएस में भी हमें शानदार रिजल्ट चाहिए, और एपीएससी में जो हमारे शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्ट को हमें बढ़ाना है। आने वाले प्रोग्राम से आमार जी बेगले प्रोग्राम आरम्भ हब आजमल आईएएस एकाडेमी एडभांस यूपीएससी कोचिंगर कारणे होक बा सिविल फाउंडेशन बेचेसर कारणे होक यार रेजिस्ट्रेशन तो আজি माने 21 मे 2টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ ৱেবছাইট www.ajmaliesacademy.in এই ৱেবছাইটত মানে তেওঁলোকে নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। বাকি ইনফৰমেশ্যনখিনি তেওঁলোকে ৱেবছাইটতে পাব বা আমাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে ৱেবছাইটতে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে পাব পাৰে। তো ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টসকলে আমাৰ ৱেবছাইট আজমল আইএএছ একাডেমীৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাব পাৰে। স্পেচিয়েলি এটা প্ৰগ্ৰাম আগৰ পৰাই চলি আছে যে ৰয়েল বেচৰ এটা যে আমি প্ৰতি বছৰে 40 জন ষ্টুডেণ্টক স্ক্ৰিনিং টেষ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়াৰ সুযোগটো কোৰ্ছ ফিটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া দিয়া হয়। আৰু ইয়াতে যিসকল অতিকৈ দুখীয়া হয় তেওঁলোকক থকা খোৱাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনিও ফ্ৰী কৰি দিয়া হয়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো মানে আমাৰ এটা টেষ্ট প্ৰতি বছৰৰ নিচিনা লোৱা হ'ব, আৰু তাতে থকা খোৱা মানে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যিসকলে বিশেষকৈ ফিনেন্সিয়েলি উইক তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দিয়া হ'ব, আৰু যিসকলে এই টেষ্টত কোৱালিফাই কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল, তেওঁলোকে টকাটো তেওঁলোকৰ নিজৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আমাৰ মানে পঢ়াটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাকী ষ্টুডেণ্টখিনি তেওঁলোকক মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ বেচতে লোৱা হ'ব। তাৰো মানে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ হোষ্টেল এৰেঞ্জমেণ্ট আছে বা তেওঁলোকে নিজা ব্যৱস্থাটো থাকিব পাৰিব। বাকী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইতিমধ্যে যেনেকৈ কোৱা হৈছে যে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা ফেকাল্টি আহিব, আমাৰ অলৰেডি যিসকল ফেকাল্টি আছে তেওঁলোকৰ যোগেদি পেলাই আমি তেওঁলোকক মানে ভালকৈ মানে প্ৰস্তুতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইটো মানে বেলেগ বেলেগ কোৰ্চেছ আছে। ধৰি লওক আমাৰ 40 যে ষ্টুডেণ্ট আছে 40 ষ্টুডেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ল, আৰু তাৰপিছত এডভান্স কোচিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে 1 লাখ টকাৰ এডভান্স বেচৰ কাৰণে, আৰু বাকি যি ফাউণ্ডেশ্যন বেচ বা এইবিলাকত থাকিব তেওঁলোক 70,000 থাকিব কোৰ্ছ ফিটো থাকিব, টোটেল কোৰ্ছৰ ফি টোটেল কোৰ্ছ ফিটো থাকিব।